very precious client, Mr. Pankaj and Mrs. Niharika, and I'll request them to share their experiences. Niharika ma'am. Okay, so there is so much to talk about. There's an entire story to tell, I can say. But in a nutshell, if I talk about the experience, was incredible. Right from the beginning, जो भी हमारा thought process था, बहुत clear था कि हमें क्या चाहिए, क्या बनाना है हमें अपने घर में. तो it was very easy to convey that thought process to both Pawan ji and Akhilesh ji. And I think the good part about the entire experience was that, and at the beginning, they understood everything that we wanted. हमारा टेस्ट क्या है, क्या डिज़ाइंस कैसे चाहिए हमें, किस तरीके के कलर्स अच्छे लगते हैं. All of it. I mean, it was very easy to convey to them. We went on multiple calls. There's so many meetings that we had, and yes. So, and after we did the design, I think Pawan ji did an incredible job with the design, and then the entire implementation of the design was also incredible. अब तो हमें घर में रहते हुए लगभग 6 months. हाँ 6 months हो चुके हैं, और I can very proudly say कि हमें जो घर मिला वो इतना robust है. It's just not beautiful. I mean, it's extremely beautiful. But वो उतना ही robust भी है. हाँ, उतना ही durable भी है. We've been in this house for more than 6 months now, and we've not faced a single problem in the house. सब कुछ चीज़ें जिस तरीके से हमने प्लान की थी, और now that we are living here, the experience is just incredible. Is all I can say in one word. Other than that, if I tell you from a design perspective, जितनी भी डिज़ाइंस हमने इनिशियली कॉन्वर्जेशंस किए थे, everything that I came up with कि पवन जी हमें ऐसे करना है, मेरे को हॉल में ये चाहिए, किचन मुझे इस तरीके की चाहिए, ये सैम्पल इमेजेस हैं या व्हाट नॉट, एंड फॉर एवरीथिंग दे वर लाइक हाँ मैम हो जाएगा. And so I think that was an experience that we got, and eventually that brought that trust into them, right? मतलब I would agree to your point that हमेशा आप बहुत skeptical होते हो कि किस फॉर्म के साथ हमें जाना चाहिए. And in fact when we also started talking कि अभी हमें इंटीरियर कराना है, so we were talking to like 6 or 7 firms parallelly. But I would say the first conversation that we had with Akhilesh ji, we went on like, I don't know, 1.5 to 2 hours call, I guess. And then we met at this our house, and then it was so clear. एक ना आपको किसी से बात करके समझ आ जाता है that that person is honest. And फिर वो जो first perception बना था आप दोनों के बारे में, वो perception continued रहा throughout the journey of 2.5-3 months that we spent. And we did the entire house, मतलब right from doing the flooring to the ceiling to interior in almost every wall of the house. Beautiful kitchen and the rooms, the kids rooms, the master bedroom, everything. So we did from scratch, पूरा तोड़ के हमने फिर से बनाया. And yet, the time frame of 2.5-3 months is an extremely low, I would say, because जब भी मैं किसी और से बात कर रही थी तो everyone was saying at least a minimum of 5 months, and they committed for 2.5 months, and within 3 months हमने यहाँ गृह प्रवेश कर लिया था. So that said, and हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड भी की, right? मतलब as जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने कुछ चीज़ें और ऐड भी की थी जो हमारी इनिशियल कोटेशंस में नहीं थी. Yet the time frame did not move that much. तो मुझे तो पर्सनली मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा. हमारा पहला घर था जैसे आपने बोला, और बहुत ही ज़्यादा इमोशंस जुड़े रहते हैं पहले घर से, और जितना ज़्यादा इस घर से आगे हम और यादें भी बनाएंगे इस घर में, और घर खरीदने के जो इमोशंस थे उतने ही इमोशंस घर बनाने के भी थे. तो वी जस्ट लिव नियर बाय, सो हम तो साइड पे ही आ जाते थे. तो हमने तो मतलब वी लाइक स्पेंट सो मच टाइम विद देम थ्रू आउट द जर्नी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यहीं पे होते थे, एंड वी सॉ द वर्कर्स वर्किंग. मतलब एक टाइम तो ऐसा भी था जब 18 लोग एक 2 BHK फ्लैट में एक साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं. इट वॉज सच एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस टू सी. आप किसी भी कोने में घर के चले जाओ, कुछ ना कुछ हो ही रहा है. सो
Yeah, and I think that's why they could deliver it in 2.5-3 months. So yeah, I think that's. And सबने इतनी तारीफ की हमारे घर की, जो देखता है, इनफैक्ट हमारे नेबर्स, जो नहीं भी जानता नीचे मिल जाता है, अच्छा आप वो 203 वाले ना, आपका घर नीचे से हमने देखा है, बहुत सुंदर लगता है. So that's that. तो हम बोल देते हैं ये रहा अखिलेश जी का नंबर, बात करो. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इनक्रेडिबल. और मतलब 6 महीने के बाद भी आपका एक्सपीरियंस है विच इज़ वेरी आई मीन गुड फॉर अस, फॉर एवरीवन. एक क्वेश्चन मतलब एक जनरल क्वेश्चन है मतलब क्लाइंट्स की तरफ से. बेसिकली क्या होता है जब भी क्लाइंट्स इंटीरियर्स के लिए देखते हैं तो उनका एक जनरल एक थॉट होता है माइंड में कि जो भी इंटीरियर डिज़ाइनर से आर्किटेक्ट्स मतलब डिज़ाइन प्रपोज करते हैं तो वो आउटपुट सेम नहीं आ पाता है, वो आउटपुट आते आते चीज़ें चेंज हो जाती हैं. तो आपके वाले केस में मतलब मैं जानना चाहूँगा कि चीज़ें किस तरीके से रहती हैं. अच्छा, मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, मैं MNC में काम करता हूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंटीरियर कराया अपने घर का. तो मैंने उनके पहले एक्सपीरियंसेस लिए, रिकमेंडेशंस ली फाइनल करने से पहले कि मैं किस एजेंसी के थ्रू जाना चाहूँगा. उन सब का फीडबैक बहुत अच्छा नहीं था. हर क्लाइंट का एक बजट होता है, जैसे किसी का 2 BHK 3 BHK या बंगलो है उसका, या किसी का इंडिपेंडेंट हाउस है, तो किसी का बजट होता है. तो सबसे पहले जो प्लानिंग हम लोग करते हैं वो हमारा माइंड में कंसर्न ये होता है कि जो क्लाइंट को चाहिए, पहली चीज़ तो ये है कि हम उसका एक BOK तैयार कर पाएँ कि व्हाट दे वांट एग्जैक्टली. उसके बाद कि वो क्या डिज़ाइन थीम चाहते हैं और क्या उनके बजट में वो चीज़ पूरी हो पाएगी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर अस कि वो पूरा हो पाए. अगर वो नहीं हो पाती है पूरी तो हम पहले ही उनको चीज़ बताते हैं कि नहीं पूरी हो पाएगी, आपका बजट दिस इज गुड इनफ फॉर योर ड्रीम होम. तो वो एक बहुत ज़रूरी होता है. तो हमने आपको बजट जैसे शुरू से स्टार्टिंग में आपने जो बताया, हमने बजट के हिसाब से ही काम किया. और कुछ चीज़ें अगर आप बाद में ऐड ऑन हुई तो यू वर वेरी ओपन टू इट, क्या ठीक है दिस इज एक्स्ट्रा, या हम उसी में और जो चीज़ें लगा कि हम अपने पार्ट पे कर सकते हैं विद इन दैट कोड जो हमने पहले अप्रूव था, तो हमने वो भी कहीं ना कहीं अपने लेवल पे की. तो बजट को लेकर के आपका क्या कहना है? मतलब बजट जो इनिशियल कोटेशन था और जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स थी हमारी, उससे बहुत वेरी नहीं कर रही थी, हार्डली 5-7% वेरी की. बट ये था कि थिंग्स वी वर एडिंग न्यू थिंग्स. सो टू बी ऑनेस्ट, जो फाइनल आपका इंटीरियर का बजट होता है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती है विद द टाइम, आपके टेस्ट थोड़ा सा और इन्हेंस होता है, आप अपनी चीज़ों को फिटिंग करते हैं कुछ नई चीज़ों को. सो 10-15% बजट अप होना इज़ नॉर्मल आई थिंक. और हमारे केस में आई थिंक उससे कम ही बजट रियल. बिकॉज जितनी जो हमने आइटम्स पहले डिस्कशन में रखे थे उनकी इनिशियल कॉस्ट तो उतनी ही रही, वो तो बिल्कुल भी नहीं चेंज हुई. जो आगे अगर बढ़ा भी दैट इंक्रीज बिकॉज हमने आइटम्स ऐड किए ना, तो बजट पार्ट वी आर सेटिस्फाइड. हाँ, दैट्स वेरी राइट, दैट्स वेरी. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. वैसे क्वेश्चन मतलब ये है कि जैसे लाइफ में हम लोग जब हाउस बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, कोई कार लेते हैं एक्सपेंसिव, तो एक ड्रीम टाइप से होता है वो. तो व्हाट आई सॉ फ्रॉम द डे वन कि जब हमने व्हेन वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग दिस होम, तो आपको एक ड्रीम की तरह ही था ये घर. राइट, जहाँ पहले रहते थे हमने वहाँ विजिट किया, तो एक पहले जो होती है वो एक अलग चीज़ होती है. व्हेन वी कंप्लीटेड द एंटायर हाउस, उसके बाद एक जो फीलिंग आपके अंदर मैंने देखी ना, दैट वाज द रियल हैप्पीनेस. और मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा कि हाँ सारे एफर्ट्स लगे तो उसका एक आउटपुट भी आया. और उसका कंक्लूजन जो आया वो काफ़ी ये था कि यू ऑल वर हैप्पी. और आज 6 महीने के बाद सबसे बड़ी बात क्या है, आज हम 6 महीने के बाद इंटरव्यू शूट कर रहे हैं. मतलब 6 महीने बाद लोग मना कर देते हैं सीरियसली. तो आज हम 6 महीने बाद एक इंटरव्यू शूट कर रहे हैं और चीज़ें सामने हैं. तो एक तो एज ए ड्रीम होम आप उसको कैसे लेते हो? अगर मैं 2-3 लाइनों में से पूछना चाहूँ आपसे तो आप क्या देंगे? So I would answer that question. So मेरे को ना मतलब घर बहुत ब्यूटीफुल हो इस तरीके का ना हमेशा से dreamt of. And even when before when we are living into a rented apartment, I always decorated my house very beautifully from rented perspective. And so जब भी हम बात करते थे तो मतलब ऐसा होता था कि जब भी we buy our first house,
विल मेक श्योर कि मतलब वो हमारा एकदम ड्रीम कम ट्रू वाला होम हो, ठीक है। और इसीलिए बिफोर वी इवन स्टार्टेड आवर कॉन्वर्सेशन मैंने एक 25 पन्ने की पीपीटी बना रखी थी जिसमें मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स एकदम कैटेगोरिकली मेंशन कर रखी थी। मुझे किचन की कैसी कैसी चीज़ें चाहिए, क्या क्या मटेरियल लगाना है, किस तरीके का सामान कहाँ बेडरूम में कैसे क्या होगा, सब कुछ। माई थॉट प्रोसेस वॉज वेरी क्लियर. Now the best part about it is that when I spoke to Akhilesh ji and then when I spoke to Pawan did our designing, and it was so easy to explain to you. And फिर मेरे thought process में आपने जो भी designs add की, it just enhanced it. And मेरी PPT तो बस एक sample थी. आप you work through it and you quickly understood कि हमें चाहिए क्या, right? किस तरीके के डिजाइन हमें पसंद आएंगे, किस तरीके के कलर्स हमें पसंद आएंगे. कई बार यू नो एज कस्टमर्स आपको पता तो होता है कि मतलब मुझे क्या चाहिए, लेकिन आप इतना अच्छे से यू डोंट हैव दैट विजन वेरी क्लियर इन योर हेड. एंड देन फिर कस्टमर्स को लगता है कि हाँ ये भी कर देते हैं, ये भी, और फिर आप बना के दो, फिर देन दे रियलाइज कि यार इतना मज़ा नहीं आया. बट हमारे साथ ऐसा नहीं था. जैसे जैसे चीज़ें बनती जा रही थी, वी जस्ट लव्ड इट. आई मीन अक्रॉस द एंटायर पीरियड आई नेवर gave a second thought to anything that we designed. So with you guys, Akhilesh ji, Pawan ji, I mean I think the honesty runs in family. You both are brothers and as brothers आप लोग इतना, आपका sync इतना मस्त है ना, मतलब you work so well. You've got your departments segregated and you know what to do. And then we met your father also, uncle ji से भी मिले हम लोग. मतलब इतना इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था ना पूरे टाइम जब हमें आपसे सपोर्ट मिला इन डूइंग द इंटीरियर. आई थिंक इट्स जस्ट इनक्रेडिबल. यू गाइज आर अ परफेक्ट डुओ एंड दैट स्टैंड्स यू आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड बिकॉज you both you guys have that passion into you ना. मतलब आप इसलिए काम नहीं करते हो क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं. ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो अ थिंग, बट आप इसलिए भी करते हो बिकॉज यू गाइज आर पैशनेट अबाउट इट. और वो चीज़ मतलब यूजुअली लोगों में नहीं मिलती. इंटीरियर डेकोरेटर्स, हाफ ऑफ देम इन द मार्केट्स आर जस्ट रनिंग स्कैम इज बिकॉज दे वांट मेक मनी आउट ऑफ द पॉकेट. बिकॉज जो भी इंटीरियर कराने जा रहा है उसके पास कुछ ना कुछ बजट और पैसा तो है. और इंटीरियर इतनी वेग फील्ड है, आप मटेरियल के साथ खेल सकते हो, डिज़ाइन के साथ खेल सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ खेल सकते हो और पैसे निकाल लोगे कस्टमर से. इट्स वेरी ईजी टू कॉन द कस्टमर्स. बट आई थिंक योर ऑनेस्टी, योर डुओ टुगेदर just rocks.